Hello students, this is our 10th video in the Indian Political Thought UGC NET PYQ video series. In this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. So we'll begin with Mahatma Gandhi. अक्टूबर 2020 में इनका एक क्वेश्चन पूछा गया था. Gandhi described himself as a, इन चारों ऑप्शंस में से we have to select one. तो लिबरल, सोशलिस्ट, सोशल डेमोक्रेट या philosophical anarchist. तो this is a simple question. We know that he always referred to himself as an enlightened anarchist. ठीक है, तो enlightened anarchist का मतलब क्या होता है? Anarchist is someone who does not believe in central authority. ठीक है, and enlightened मतलब someone who is well informed. ठीक है, so enlightened anarchy या philosophical anarchist will be the answer for this question. Next, December 2014 में पूछा गया था ये question. Identify the correct sequence of the books written on Mahatma Gandhi in ascending order. तो हमें वही chronologically we have to put these all together. This is a very factual question, थोड़ा tough है. So what I would want you to do is in सब books का author as well as year of publication you should remember. ठीक है, since this is a PYQ, so there is a very high possibility that this may be asked again. ठीक है, तो फिर फर्स्ट क्या है, रिचर्ड एटनबरो की इन सर्च ऑफ गांधी. सो दिस वाज रिटन बाय पब्लिश्ड इन 1982. उसके बाद में सी एफ एंड्रोज की महात्मा गांधी इज आइडियाज. दिस वाज पब्लिश्ड इन 1929. बी भट्टाचार्य का एवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी. दिस वाज पब्लिश्ड इन 1971. फिर जे बी कृपलानी की गांधीयन थॉट. दिस वाज पब्लिश्ड इन 1964. तो इनको we'll arrange them chronologically in ascending order, so the answer will be 1, 2, 4, 3 and 1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2014 का है. Who of the following is of the view that it is not Gandhi who made satyagrah? Was not Gandhi who made satyagrah but satyagrah which made Gandhi the Mahatma. So इसका आंसर रहेगा आर दिवाकर. He was basically a member of the Constituent Assembly and he had written many books on Gandhiji. So according to him, Satyagraha, the concept of Satyagraha was way bigger than Gandhiji. ठीक है, उनका ऐसा मानना था. So he wrote many books like Mahayogi, My Encounter with Gandhi, Gandhi the Spiritual Seeker and Satyagraha, The Power of Truth. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2015 का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया. तो सर्वोदया का हम लोग को पता है मीनिंग क्या होता है. लिटरल मीनिंग इज अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल. ठीक है, तो उसके हिसाब से वील सी दी ऑप्शंस. वेलफेयर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल. तो दिस इज रॉन्ग सिंस इट इज नॉट ओनली द वेलफेयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पर ऑल सेक्शंस का होना चाहिए वेलफेयर. अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल है ना, तो ऑल सेक्शंस का होना चाहिए. तो दिस शुड बी द आंसर, फोर्थ वाला. सेकंड क्या है, गवर्नमेंट बाय द मेजॉरिटी पार्टी. दिस इज रॉन्ग. प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज. दिस इज ऑल्सो अगेन रॉन्ग सिंस he had talked about welfare of all sections of the society. So the answer will be 3, only 4. ठीक है, next question was asked in July 2016. Who among the following rejected the idea that caste status was the result of divine award or punishment? तो ये एक सुपरस्टिशन था पहले के ज़माने में कि किसी का कास्ट वाज ड्यू टू हिज पिछले कर्म की वजह से जो भी उनका फल होता है कास्ट. सो दिस वाज रिजेक्टेड बाय महात्मा गांधी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सो दिस ये मैं इसमें बता देती हूँ कि गांधी जी अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल हायरार्की. दिस इज अ वेरी कॉमनली नोन फैक्ट. हाउएवर he recognized the functional division of the Indian society. So according to him जो हमारा
country was divided into four sections, na, Brahmin, Kshatriya, um, Vaishya and Shudra. So according to him, this is a decent division of the society, but it should not be used to discriminate against other castes. या इनमें कोई social hierarchy नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, rather they are ऐसे horizontal division है society का, vertical division नहीं है ये, ठीक है. Next question, जुलाई 2016 का ये है. Who among the following said that most religious men I have met are politicians in disguise? अच्छा, I, however, who wear the guise of a politician in disguise, am at heart a religious man. तो ये गांधी जी का ही स्टेटमेंट है. He was the one who wanted religion to be included into politics, ठीक है. Because according to him, in order to make politics ethical, you need to ethical and moral बनाने के लिए you need religion in politics, ठीक है. तो उन्होंने बोला था कि रिलीजन को ऐड कर देना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स बिकम्स एथिकल एंड मॉरल. नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2017 का है. EMS नंबूदिरी पद का जो बुक था महात्मा गांधीयन इज्म 1958 की, it analyzes Gandhi from the point of view of which of the following political philosophies. तो इसमें हमें पता है कि EMS नंबूदिरीपद was basically a Marxist thinker, ठीक है. तो automatically answer will be Marxism, and in this book he had actually criticized Gandhi from a Marxist perspective, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2017 में था. Who among the following declared, uh, for me, morals, ethics, and religion are convertible terms. A moral life without reference to religion is like a house built upon sand. So this was famously said by Mahatma Gandhi himself. तो ये रहेगा इनका आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2017 का है. असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है. असर्शन क्या है? गांधी वॉज critical of the material civilization, ठीक है, this is correct. And he detested the industrial revolution, this is also correct. He believed that the industrial revolution was destroying deeper values, this is also correct. So he was a great critique of the industrial revolution. So both A and R are correct. Next question November 2017 का है. How did Gandhi describe himself? So this is a repetition है, ठीक है. तो इससे आपको पता चलता है कि how important PYQs are since exact question has been repeated again in 2017, ठीक है. तो again इसका आंसर वही है, philosophical anarchist. Next question 2018 में पूछा गया है. Assertion and reasoning question है. For Gandhi, enlightened anarchy refers to a form of society which functions without the coercive power of the state. Enlightened anarchy, हाँ ये सही है. There is no central authority, मतलब वही होता है ना. Enlightened anarchy मतलब no central authority, ठीक है. उसके बाद में रीजनिंग क्या है? इंडिविजुअल्स शुड हैव फुल कंट्रोल ऑफ देमसेल्व्स, हाँ ये भी सही है. एनलाइटेंड का मतलब क्या है? एनलाइटेंड एनार्की में वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है. तो बोथ ए एंड आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2019 का सवाल है ये. अगेन असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू गांधी पॉलिटिक्स डाइवोर्स्ड फ्रॉम रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप. हाँ दिस इज अ वेरी फेमस कोट ऑफ हिज, ठीक है. रीज़न क्या है इसका? द एंट्री ऑफ रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स इज नेसेसरी बिकॉज विदाउट रिलीजन इट मे टेक कम्युनल कलर. सो दिस इज रॉन्ग. देखो क्या बोला, क्या है इसमें? एंट्री ऑफ रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स इज नेसेसरी, हाँ ये बोला, इतना बोला था उन्होंने, गांधी जी ने. बट ही सेड दिस बिकॉज ही वॉन्टेड पॉलिटिक्स टू बी ethical and moral, ठीक है. सो दैट इज वाई ही वॉन्टेड religion to be a part of politics, not because it may take a communal color, ठीक है. So the answer will be
आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर टू होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गांधी जी बिलीव्स इन एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, नो दिस इज रॉन्ग। दिस फिर मीन्स जस्टिफाई द एंड, ये सही है, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में पूछा था, अरेंज द फॉलोइंग आश्रम्स फाउंडेड बाय गांधी जी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये चार दिए हैं, तो आई जस्ट लेट यू नो कि वैसे क्या क्या कब इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट आश्रम of Gandhiji was set up in 1904 and its name was Phoenix Settlement, ठीक है। तो this was set up in South Africa itself, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आश्रम was in 1910, ये था टॉल्स्टॉय फार्म, दिस was also in South Africa, ठीक है। उसके बाद में थर्ड was once he came to India, the first ashram which he set up here in India was in Ahmedabad, तो कोचरा आश्रम था एट अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद सेवाग्राम आश्रम वॉज हिज लास्ट आश्रम विच ही हैड सेट अप, दिस वॉज ऑल्सो इन इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। बस दिस इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर 2022 का है, विच वंस आर ट्रू अबाउट पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह। तो वी हैव टू टेल कि इन सारे स्टेटमेंट्स में से व्हाट इज़ ट्रू अबाउट पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ दोनों में डिफरेंस होता क्या है। पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह में मेन डिफरेंस ये है कि दिस बेसिकली मीन्स पीसफुल ऑपोजिशन, बट इसमें ऑल्सो वायलेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड व्हेन नीडेड, वायलेंस व्हेन नीडेड, ठीक है। एंड दिस इज अ बेसिकली अ नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है एक, पीसफुल सॉरी पैसिव रेजिस्टेंस इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, वेराज सत्याग्रह का क्या मतलब है, ये दिस इज प्योरली मॉरल एंड एथिक्स बेस्ड है ये, ठीक है। इसमें दे हैड कॉल्ड फॉर अनकंडीशनल नॉन वायलेंस, and this is a positive concept unlike passive resistance, ठीक है। सो अगेन वी विल रीड द क्वेश्चन, विच वंस आर ट्रू अबाउट पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह। फर्स्ट क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू सत्याग्रह, सो दिस इज रॉन्ग, दोनों में डिफरेंस अभी देखे हमने। पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ वाइल सत्याग्रह इज अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सत्याग्रह इज नॉट अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ बट रादर दे चूज दी हाई पाथ ना, कि हम लोग बिल्कुल नॉन वायलेंस पे ही रहेंगे, तो दिस इज रॉन्ग। पैसिव रेजिस्टेंस इज नेगेटिव इन प्रैक्टिस वेयर एज सत्याग्रह इज पॉजिटिव मोरालिटी, दिस इज ट्रू। उसके बाद में पैसिव रेजिस्टेंस इज वेपन ऑफ द वीकर सेक्शंस वेयर एज सत्याग्रह नेवर डिजायर्स टू टेरराइज दी ओपोनेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। उसके बाद सो द आंसर विल बी थ्री, थर्ड एंड द फोर्थ वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन अक्टूबर 2022, आइडेंटिफाई द फर्स्ट आश्रम ऑफ गांधी जी इन इंडिया। तो वो अभी हमने पढ़ा था, कोचरब आश्रम है अहमदाबाद में, में ये हैड सेट अप इन 1915, ठीक है। नेक्स्ट next question was in 2023, who had said that the truth is not that the spirit of conflict and conquest is at the origin and in the center of Western nationalism. So this is a famous statement which was given by Rabindranath Tagore, ठीक है। तो आप ये याद रखना, many a times quotes are asked in exams in UGC NET especially, they ask quotes quite a lot, ठीक है। सो ट्राई टू रिमेंबर दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा है,
if we consider the Gandhian idea of सत्याग्रह as a dialogue, ठीक है, तो सत्याग्रह का बेसिक मीनिंग क्या होता है वैसे? आई टेल यू, इट मीन्स नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टू द इविल, ठीक है। सत्याग्रह का लिटरल मीनिंग ये है बेसिकली। तो अभी बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है, इफ वी कंसिडर गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह एज अ डायलॉग देन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है कि अगर हम सत्याग्रह को डायलॉग से इक्वेट करें, डायलॉग अगर हम को आपको याद होगा प्लेटो में भी हमने पढ़ा है डायलेक्टिक्स, है ना, तो उसी की बात हो रही है कि इफ़ इट इज़ इक्वेटेड विद दैट, तो विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। द नेचर ऑफ गांधीज ट्रूथ फैसिलिटेट्स डायलॉग्स, सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, हमको नॉट ट्रू बताने को पूछा है, ठीक है। उसके बाद द नेचर ऑफ गांधीज ट्रूथ इज एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी, एंटीथेटिकल मतलब इनकम्पैटिबल, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया कि गांधी का ट्रूथ इज इक्विवेलेंट टू इक्वालिटी होता है ना हमारे हिसाब से, पर इन्होंने उल्टा लिखा है, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, इन सच अ डायलॉग पार्टीज आर कंस्ट्रक्टेड एज द एडवर्सरी, तो अगेन दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दे आर नॉट एडवर्सरीज बट रादर दे आर ऑन द सेम पेज, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ इज अ शेयर्ड एक्सरसाइज, सो दिस इज ट्रू। सो सिंस दे हैव आस्क्ड नॉट ट्रू कौन सा है, तो आंसर रहेगा बी एंड सी, तो थर्ड वाला विल बी दी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 23 में पूछा गया है, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, अहिंसा वॉज कॉम्प्लीमेंट्री टू गांधीज मॉडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, है ना, पता होगा सबको, and this that was certainly the most original and creative model of social change and political action। हाँ, तो ये सही है, गांधी इस मॉडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में मेन रोल किसका था, अहिंसा का ही था। नेक्स्ट क्या है, रीजनिंग क्या है, दिस वाज अ थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स दैट ग्रेजुअली बिकेम द डोमिनेंट आइडियोलॉजी of a national political movement in which Gandhi reigned supreme. So this is also correct because in most of the Gandhi-led movements like हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1919 का, और इवन CDM था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930s में जो था, बोथ ऑफ देम हैड नॉन वायलेंस और अहिंसा एज अ सेंट्रल आइडिया, ठीक है। So both of these statements are correct and R is the correct explanation of A. Next question क्या है, December 23 का है, what is the main argument of philosophical anarchism? See again this question has been repeated for the third time. तो इसमें मैंने क्या बताया था, एनार्किज्म क्या रहता है, वो ये नो सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, और बस इसकी बेसिस पे वील आंसर दैट नो स्टेट शुड एग्जिस्ट, सो दिस इज रॉन्ग। ऐसे कोई भी डेफिनेटिव स्टेटमेंट किसी भी एग्ज़ाम में अगर दिया हुआ है ना कि बिल्कुल ही पूरा नो या ऑल करके, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, दो स्टेटमेंट्स आर यूजुअली रॉन्ग, ठीक है, दैट नो स्टेट इन फैसिलिटी इन फैक्ट हैज़ authority, so this is also wrong. The arguments for philosophical anarchism are opposed to liberal principles, this is wrong. All states should exist in mutual cooperation and harmony, this is true, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ थोड़ा लिबरल कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये फिलोसफिकल एनार्की का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसका ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि गांधीज वर्जन ऑफ फिलोसफिकल एनार्किज्म बेसिकली फोकस्ड अपॉन डिसेंट्रलाइज्ड विलेज कम्युनिटीज, ठीक है, विच को एग्जिस्टेड इन हार्मनी। तो ये आपने उनका पढ़ा होगा, ओशनिक सर्कल्स का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेयर इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ओशनिक सर्कल्स, ठीक है। फिर दिसंबर 23 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Which of the following did not feature as a matter of debate between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore? So basically, they had three points of debate. There were three matters on which Gandhi and Rabindranath Tagore did not see eye to eye. तो फर्स्ट क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज पे था। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली यही है कि गांधी जी वॉज मोर इन फेवर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, वेर एज टगोर wanted कि इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी द वन विच शुड बी प्रमोटेड इन इंडिया। ठीक है। सेकेंड था नेशनलिज्म पे भी था। देखो, गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ सेल्फ रिलायंस, वेर एज टगोर रविंद्रनाथ टगोर फोकस्ड अपॉन यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म कि ऑल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, वो वाले कॉन्सेप्ट पे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। वेर एज गांधी जी वॉन्टेड सेल्फ रिलायंस। तो उनका हमने पढ़ा था अभी फिर से, ओशनिक सर्कल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी ही वांटेड डिसेंट्रलाइज्ड विलेज कम्युनिटीज़ विच वर इंडिपेंडेंट, है ना। तो सेल्फ रिलायंट थे, वेर एज गांधी जी सॉरी Rabindranath Tagore ji was in favor of interdependence between different countries। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंटेंशन was the spinning wheel। According to Gandhi ji, he had used the spinning wheel as a symbol for self sufficiency। तो आपको पता ही होगा, चरखा वॉज वेरी प्रोमिनेंट उनके टाइम पे, और उन्होंने काफ़ी उसको सिम्बॉलिकली यूज़ किया टू हाईलाइट सेल्फ सफिशिएंसी, वेर एज टगोर हैड क्रिटिसाइज्ड दिस मूव ऑफ गांधी एंड हैड क्वेश्चनड इट्स प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो। ठीक है। फिर फोर्थ क्या ऑप्शन दिया है इन्होंने, फ्रीडम। बस यही तीन पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन थे दोनों गांधी जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी के बीच में। अदर दैन दैट इसमें क्या दिया है, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। सो दिस इज रॉन्ग सिंस बोथ ऑफ देम वांटेड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, तो उनका कोई भी मैटर ऑफ डिबेट नहीं था ये वाला पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिसंबर 23 का क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड कबीर एज मुक्ति दूत। तो इसमें वही है, गांधी जी ने बोला था उनको। एंड मुक्ति दूत बेसिकली लिटरली मीन्स अ मैसेंजर ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का है, 2023 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ गांधीज थ्योरी ऑफ सत्याग्रह can help in the process of dialogue in plural societies threatened by mutual distrust। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। इसका देखो मतलब क्या है, सत्याग्रह हमें पता है कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो हमें पता है कि सत्याग्रह मीन्स नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, वेर एज क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डायलॉग इन प्लूरल सोसाइटीज़। हाँ, तो इसमें बोला है कि जो सोसाइटीज़, प्लूरल सोसाइटीज़ कौन से होते हैं, विच आर कल्चरली प्लूरल, मतलब बहुत सारे कल्चर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लोग प्लूरल सोसाइटीज़ बोलते हैं। उनके बारे में, उनके बीच में, इन ऑर्डर टू इंश्योर पीसफुलनेस एंड हार्मनी, पीसफुल एज वेल एज हारमोनियस को एग्जिस्टेंस के लिए सत्याग्रह के कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन बेसिकली। सत्याग्रह में जैसे डायलॉग एक कॉन्सेप्ट है कि देयर शुड बी डायलॉग बिटवीन वेरियस कंपीटिंग पार्टीज़ के बीच में डायलॉग होता है। तो और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन ऑर्डर टू इंश्योर पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन पीपल ऑफ वेरियस कल्चर्स, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें बताने हैं इनमें से। फर्स्ट क्या है, अटेंशन टू प्री कंडीशंस ऑफ डायलॉग helps to establish the moral standing of the participants। तो दिस इज ट्रू। ठीक है। सेकंड क्या है, नॉलेज दैट आर ग्रास्प ओवर ट्रूथ इज पार्शियल इनकलकेट्स सेल्फ रिस्ट्रेंट। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हर ह्यूमन बीइंग को ये बात पता है कि जो
मेरा जो भी परसेप्शन है दैट इज़ नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि सिंस ट्रूथ इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी एक ह्यूमन को समझ नहीं आएगा कि पूरा ट्रूथ क्या है पूरे वर्ल्ड में, है ना। सो दैट इज समथिंग दैट ही शुड बी अवेयर ऑफ। तो दिस, अगर उन्हें पता है कि मेरे को पूरा ट्रूथ किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता है, सो ऑटोमेटिकली दे विल बिकम हम्बल एंड इंश्योर सेल्फ रिस्ट्रेंट। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, द सत्याग्रही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग डायलॉजिकल स्पेस। सो दिस इज रॉन्ग। सत्याग्रह की ग्रही का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंडीड टू क्रिएट डायलॉजिकल स्पेस, मतलब उनको दे हैव टू इंश्योर कि डायलॉग इज कंडक्टेड बिटवीन द वेरियस कंपीटिंग पार्टीज। सो दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस डिसिपेट्स फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन एंड अदरनेस। तो ये बढ़िया, ये दिस इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेडीनेस टू कॉम्प्रोमाइज may negate the moral standing of participants. So this is wrong again, है ना। तो readiness to compromise is a positive aspect according to Satyagraha, not a negative aspect. ठीक है, so the answer will be A, B and D only. ठीक है, next question this was asked in December 23. Which of the following statements is not associated with Mahatma Gandhi? तो इसमें रहेगा क्या क्या स्टेटमेंट्स है, नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ आवर स्पीशीज एज वायलेंस इज द लॉ ऑफ द ब्रूट। सो दिस वाज नॉट सेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, इट इज रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू हिम। फिर अ नेशन दैट इज केपेबल ऑफ लिमिटलेस सैक्रिफाइसेस इज केपेबल ऑफ राइजिंग टू लिमिटलेस हाइट। दिस इज करेक्ट, दिस वाज सेड बाय महात्मा गांधी। The injunction, love your enemies, is not only the noblest idealism, it is also the most practical politics. तो ये भी इनफैक्ट गांधी जी ने ही बोला था। नेक्स्ट, टू बी लव योर एनिमीज, ये गांधी जी के स्टेटमेंट्स हैं। टू बी सेन इन अ वर्ल्ड ऑफ मैडमेन is itself a form of madness. So this was not said by Gandhi ji. लास्ट क्या है, माई नेशनलिज्म इज इंटेंस इंटरनेशनलिज्म। ये टैगोर जी का फेमस स्टेटमेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर, उनका फेमस स्टेटमेंट है, नॉट ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद गांधी। तो बी एंड सी आर एसोसिएटेड विद हिम, तो बाकी बचे हुए ए डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का ही है अगेन, फाइंड आउट द बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी गिवन बिलो। तो मॉडर्न इंडिया, 5 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से वील जस्ट सी कि किसकी बुक किसने लिखी है। मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र की बुक है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इज अ बुक बाय गांधी जी, सो दिस विल बी करेक्ट। फिर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेन बिपिन चंद्र जी की बुक है। बाई सोशलिज्म इज अ बुक बाय जयप्रकाश नारायण। और हिंद स्वराज was actually written by महात्मा गांधी जी also. तो the answer will be B and E only. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन दिसंबर 23 का ही है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। conflict in society and politics is inevitable, so this is correct. ठीक है, the usage of violence and conflicts cannot be eliminated by protests against such violence, this is correct. ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर वायलेंस हो रहा है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। दिस इज ट्रू कि जितना भी प्रोटेस्ट कर लो, देयर इज नो गारंटी दैट वायलेंस विल एंड। ठीक है, नॉन वायलेंट एक्शन कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 मेथड्स, प्रोटेस्ट एंड परसुएशन, नॉन कोऑपरेशन एंड नॉन वायलेंट इंटरवेंशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, फिर यूज ऑफ नॉन वायलेंट मेथड्स इज अ गारंटी ऑफ सक्सेस। तो ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या पहले भी क्या बोला था, कोई भी डेफिनेटिव स्टेटमेंट है ना, दे आर यूजुअली रॉन्ग इन मैनी एग्जामिनेशंस। इवन आप यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में देखेंगे, कोई भी डेफिनेटिव सा स्टेटमेंट होगा जिसमें जैसे ओनली, नो, ऑल, ये सब करके कोई भी स्टेटमेंट्स रहेंगे, दे आर यूजुअली रॉन्ग। ठीक है,
तो so the answer will be 4 A, B and C only. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, December 23 का ही है अगेन। तो इसमें हमें ऑथर्स दिए हैं एंड देयर वर्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, एंड वी हैव टू मैच देम। फर्स्ट वर्क क्या है? अ प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो ये एक्चुअली जयप्रकाश नारायण जी की फेमस वर्क है। फिर नेक्स्ट क्या है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, दिस वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी। The Indian War of Independence of 1857. So this is a famous book by B.T. Savarkar. Next है Marx, Gandhi and Socialism. So this was written by Ram Manohar Lohia ji. So based on this we can answer this question. तो इसका शायद ऑप्शन 2 सही आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है August 24 का, who founded the All India Harijan Sangh? So this is a very simple question. We all know that Mahatma Gandhi ji was the one who had formed All India Harijan Sangh, and he was trying to uplift the untouchable sections of the society. ठीक है? तो that is all for Mahatma Gandhi. Thank you. Please like, share and subscribe to our channel if you found this video helpful.